آواز لگاؤ علماء کرام ممبروں پر، خدا کے واسطے عید الفطر کے دن، انعام کے دن اللہ جل شانہ سے جھولیاں بھرنے کے دن خدا کے واسطے کالر والا لباس پہن کے نہ جانا. یہ میرے عزیزو عیسائیوں کی علامت ہے، صلیب کی علامت ہے. یہ پٹی اور یہ کر کے کالر پہن لیا، یہ صلیب کی علامت ہے. جیسے عیسائیوں کے کراس کا ایک نشان ڈلا ہوتا ہے، فرماؤ لوگوں یا مغزی گلا پہنو یا گول گلا پہنو. یہ فاطمہ کا ابا آمنہ کے لال جناب محمد مصطفیٰ کی سنت ہے. سارے غلام رسول ہو، میں بھی غلام رسول ہوں، آپ بھی غلام رسول ہو. صبح ذرا جھانیاں چلے جانا، میتلا چوک چلے جانا، ملتان چلے جانا، خانے وال چلے جانا، کسی غلام رسول کی دکان سے سیدہ فاطمہ الزہرا والا لباس لا کے دکھا دینا. کھدر کا موٹا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، فاطمہ کیا بات ہے، کپڑے پسینے سے تر رہے، تجھے پتہ نہیں سورج آگ برسا رہا ہے، اے فاطمہ کیسا لباس پہن کے بیٹھی ہے. کہا تجھے پتہ نہیں کل ابا جان آئے تھے اور ابا جان فرما رہے تھے فاطمہ باریک لباس جو پہننے گا اس میں اس کا جسم نظر آئے گا، وہ جنت سے محروم کر دیا جائے گا. علی میں تو ڈر کے موٹا لباس پہن کے بیٹھ گئی. رب کعبہ کی قسم ہے، زمین والے تو دور کی بات، آسمان والوں کی بھی میرے جسم پہ نظر نہ پڑ جائے. روزہ افطار کرنے والا، سحری رکھنے والا، سحری کرنے والا جنید بغدادی کیسے بنے گا؟ وقت کا پیر کب بنے گا؟ وقت کا عالم کب بنے گا؟ جس پر اتنا ظلم ہوا، جس کے روزے پر اتنا ظلم ہوا، اس کا روزہ کامل کیسے بنے گا؟ روٹی پکانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، لسی بنانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، آٹا گوندنے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، دسترخوان لگانے والی نے سر پہ دوپٹہ نہ رکھا، شرم ہی نہیں آئی. اجوا کی کھجوریں زمزم رکھنے والی نے جس میرے عزیزوں دوپٹہ نہ رکھا، ننگے سر پکا کے اولاد کے بھائیوں بہنوں کے آگے رکھ دیا اور سینہ تان کے بیٹھ گئی. رب کعبہ کی قسم ہے اس کا روزہ آفت تو لے کے آئے گا، آسمان سے خدا کی رحمتیں کوئی نہیں لے کے آئے گا. عجیب لوگوں نے مذاق بنا لیا. 4 بجے میرے عزیزوں، 3:30 بجے کہتے ہیں موبائل دیکھتے دیکھتے ابھی کھا پی کے سو جاؤ، سحری میں کون اٹھے گا؟ تجھے آمنہ کے لال مکے کے در یتیم کی بات پر یقین نہیں؟ آپ نے فرمایا سحری کھاؤ، سحری میں برکت ہے، جیسے کھجور کا دانہ کھا لو، لسی کا گھونٹ پی لو. سحری کھانے والے کے لیے آسمان کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. کتنا بد نصیب ہے. اور میرے عزیزوں سحری کا انکار کیا، آسمان کے فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا ہے. پتہ نہیں یہ کہاں تک صحیح ہے، یہ کہاں تک غلط ہے. پرانے وقتوں میں جب بالکل چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، ناک منہ صاف کرنا نہیں آتا تھا، اس وقت فجر کی اذان ٹائم پہ ہوا کرتی تھی، اور جو دوران نماز کا وقفہ 35 منٹ کا ہوتا تھا اس میں لوگ اپنے 2-2 3-3 پارے پڑھ لیا کرتے تھے. اب تو علماء کرام نے مسئلہ نکالا، مفتیان کرام نے مسئلہ نکالا، اذان کی متصل نماز ہو جائے گی تاکہ لوگ سو جائیں اور اس لوگوں کے سونے کی وجہ سے نمازیں خراب نہ ہو. اس لیے نمازیں پیچھے لے آؤ تاکہ لوگوں کا سونا ہی خراب نہ ہو. یہ قوم کبھی خوش ہے اللہ پر؟ مغرب کی اذان کے بعد فوراً نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اس وقت تو تھورنا کھارنا ہوتا ہے، اس وقت تو 10 منٹ کے بعد نماز کھڑی کی جائے گی. اپنا مطلب ہے نا مولانا؟ دو جواب ہو جائے گا تاکہ لوگ افطاری آرام سے کر کے آئے. پھر تو نے افطاری کے لیے روزہ رکھا، اللہ کے لیے نہیں رکھا. سحری کے فوراً بعد اذان ہوتے 5 منٹ بعد نماز ہو جائے گی تاکہ سارے پڑھتے سوئے. اچھا اس کا مطلب جلدی نماز ہوگی تو سب پڑھیں گے، دیر سے ہوگی تو اللہ کے آگے سجدہ کوئی نہیں کرے گا. ہماری یہ نہ لگاؤ میں آگے بلڈ پریشر کا مریض، ہماری طبیعت ختم ہو جانے سے سیٹنگ ہوا تھا، میرے سے نہیں برداشت. اچھا بتاؤ جو باتیں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں بھائی؟ صحیح کر رہا ہوں. اگر 15 منٹ نماز کا وقفہ دیا جاتا، 20 منٹ نماز کا وقفہ دیا جاتا، رب کعبہ کی قسم ہے اس کا مطلب یہ ہے اسے نیند کی اہمیت ہے، اللہ کی محبت کی اہمیت کوئی نہیں. اگر اللہ کی محبت کی اہمیت ہوتی، کملی والے سے پیار ہوتا، 25 منٹ کے اندر 200 مرتبہ درود شریف پڑھ لیتا، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیتا، قرآن کے 2 رکوع پڑھ لیتا. رب کعبہ کی قسم اس کا سونا تو سونا دور کی بات ہے، اس کا جاگنا سونا سارے کا سارا روزوں میں لکھ دیا جاتا. جس طرح میں اس میں تقریر کر رہا ہوں نا، خبر اپنی خطابت کا ایک رنگ ہوتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے 15 پہلوان میرے گلے کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے. درود شریف پڑھو اللہ پاک، اور درود شریف پڑھ کے اس مائک کو ہدیہ کرو. اللہ مذاق نہیں کر رہا.
बिजली चली जाए दुरूद शरीफ पढ़ के वापडा वालों को हदिया कर दो। गैस चली जाए मेरे अजीजों गैस वालों को हदिया कर दो। पानी चला जाए पानी वाले को हदिया कर दो। मेरे अजीजों अगर सुन्नत के अंदर कमी आ जाए तो गुम्बद खजरा वाले को हदिया कर दिया करो। दुरूद शरीफ आफतों को टालता है, दूसरी दुरूद शरीफ मुसीबतों को टालता है। इसका पढ़ना मेरा जीजो दुखों को टालता है, सुख लेके आता है, प्यार लेके आता है, अमन लेके आता है, सुकून लेके आता है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों, खाना मेरा जीजो पकने में देर है, खाने का जायका बदला हुआ हो, खाने का जायका कुछेला लगे, घर वाली दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मार दे, पानी मेरा जीजो कुछेला लगे, दुरूद शरीफ पढ़ के मार दे। ये इतना बाबरकत दुरूद शरीफ है। तूने दुआ की 15 मिनट दुआ करता रहा, तेरी दुआ 5 किलो की हो गई, तेरी दुआ 10 किलो की हो गई, तेरी दुआ मांगते मांगते 10 मन की हो गई, 10 मन की हो गई। तूने एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा, 10 मन की दुआ को पर लग गए। रब्बे काबा की कसम दुरूद शरीफ का पढ़ना पर लगना तेरी दुआ को उठा के आसमानों पे ले गया है। जिसे शौक हो इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाब मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत का, जुमेरात के दिन इशा की नमाज के बाद 2 रकात ज़ियारतुन नबी की नियत से 2 नफिल पढ़ ले। पहली रकात में सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ ले और उसके बाद 35 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ ले। दूसरी रकात में फिर सूरह फातिहा 35 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ले। सलाम फेरने के बाद वहीं बैठा बैठा 1000 मरतबा पढ़े सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी, सल्लल्लाहु अला नबीयिल उम्मी। जुमेरात को यानी शब जुमा की रात को पढ़ा, अगला दिन जुमा, हफ्ता इतवार, पीर, मंगल, बुध, फरमाए 8 दिन गुजरने नहीं पाएंगे, ख्वाब में काली कमली वाले की ज़ियारत नसीब हो जाएगी। बोलना हलाल का हो, पहनना हलाल का हो, खाना हलाल का हो, मकान हलाल का हो। अगर मेरा जीजो सनवा घर के अंदर, अगर मेरा जीजो सनोकर डब्बू की जगह पर, अगर बेहयाई हयात के अड्डे पर कमली वाला नहीं आता तो रब्बे काबा की कसम पे नमाजी की कब्र में भी कमली वाला कोई नहीं आता है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मैं कब्र पर मेरे अज़ीज़ों पता नहीं 7 या 8 दिसंबर को आज से 3 महीने पहले मैं 20 मिनट बैठा रहा। अल्लाह अकबर, मुझे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र से ऐसे महसूस हुआ। बिलाल कहने लगे बता तुम्हारे पाकिस्तान में इश्क का क्या पैमाना है? मेरे कहा हमारे पाकिस्तान में तो है सरकार कब्र चावड़ गए आखन गया छड़ दो मेरा। बिलाल हबशी ने मुस्कुरा के दिखाया, फरमाया सरकार अगर कब्र में आते हैं तो रब्बे काबा की कसम मुझे मदीना छोड़ के दमिश्क में ना आना पड़ता। सारी जिंदगी दाढ़ी मुंडाता रहा, सारी जिंदगी बेनमाजी रहा, सारी जिंदगी रोज़ानी खोजेदार रहा। मेरा ईमानदारी से बताओ बिलाल की कब्र में आमना का लाल आएगा या झाड़ियां वालों तुम्हारी मेरी कब्र में आएगा? अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने घर में बुलाने का, अपनी मस्जिद में बुलाने का, अपनी कब्र में बुलाने का ये म्यार है तो सैयदा फातिमा ज़हरा को मुसल्ले पे लेटा देखकर रहमत वाले नबी नाक की नथों पे उंगली रखकर ये यूं ना फरमाते अली की सांस आ रही है। आपने फरमाया फातिमा, बिलाल मस्जिद में अज़ान देने के लिए चला गया, ए फातिमा मुसल्ले पे खड़ी हो जा। सैयदा फातिमा ज़हरा क्या सो रही थी, क्या आराम कर रही थी? नहीं नहीं, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन नमाज के लिए तशरीफ लाए। हज़रत अली को बाहर परेशान देखा, आपने फरमाया अली क्या बात है? हज़रत अली ने घर की तरफ अंदर इशारा कर दिया। रहमत कायनात ने हुजरे का पर्दा हटाया, देखा सैयदा फातिमा मुसल्ले पे पड़ी है। आप रहमतुल लिल आलमीन ने सैयदा फातिमा ज़हरा को जगाया, उठाया। अम्मा की हल्की हल्की सांसें चल रही थी। पाक पैगंबर ने सैयदा का सर अपनी गोद में रखा और मैं फातिमा क्या बात है? जब अम्मा ने जवाब ना दिया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा अली क्या बात है? जनाब अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे कमली वाले नाराज नहीं होंगे तो बात करो। आपने फरमाया अली क्या बात है? तो 4 दिन हो गए तेरी बेटी के पेट में खजूर का दाना भी कोई नहीं गया है। तेरे मेरे वर्ग अब्बा होता, तेरे मेरे जैसा बाप होता, बेटी का हाथ पकड़ के लाता, कहता तुझे मस्जिद नबवी में घसीटूंगा, तुझे इलाके में पंचायत में बुलाऊंगा। हमने यूं बच्ची दी थी, तूने हमारी बच्ची का ख्याल कर दिया। सैयदा फातिमा ज़हरा के कान में कहने लगे है फातिमा 4 दिन से रोटी नहीं मिली, तूने अली से झगड़ा तो नहीं किया? एक बेटी रोटी अली के हाथ में नहीं, रोटी अली के खुदा के हाथ में है। अल्लाह अकबर।
और लोगों माँ बाप तो घर बसाया करते हैं, हमारी औलाद किन माँ बाप के हत्ते पड़ गई जो अपनी बच्चियों का घर उजाड़ने में देर नहीं करते। मेरी अम्मी को कौन समझावे, मेरे अब्बू को कौन समझावे। अल्लाह अकबर, तवीजों से घर नहीं बना करते बल्कि किरदार से बना करते हैं। अम्मी तवीज लेके तो आ रही है, बेटी को किरदार नहीं दे रही। अगर माँ बेटी को किरदार दे देती, बाप अखलाक दे देता, रब्बे काबा की कसम तलाक की शरह कम होती, घर बसते। अल्लाह अकबर, घरों के अंदर सूखी रोटी खा के भी गुजारा हो जाया करता। गली के अंदर झगड़े हो रहे हैं, मोबाइलों पे झगड़े हो रहे हैं, पंचायतों के अंदर फैसले हो रहे हैं। वजह क्या बनी थी? साल के 2 जोड़े बनाने का वादा किया था और लोग हो अल्लाह की कसम साल के जोड़े न बने, नौबत तलाक तक आ गई। हुजरे मुबारक में बदरी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दाखिल हुए। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का हाथ पकड़ा, फरमाया आयशा जरा आज मुझे एक बात बता दे। तो क्या कमली वाले? फरमाया तू चाहती है जन्नत में मेरा हाथ पकड़ के मेरे साथ जाए और जन्नत में जहाँ मैं रहूं तो मेरे साथ रहे। कभी या रसूल अल्लाह ये कौन नहीं चाहेगा। फरमाया आयशा फिर बता तो चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाएगा? जी जी। 3 मरतबा फरमाया आयशा तू चाहती है जन्नत में मेरे साथ जाएगा? जी। फरमाया आयशा सुन ले, अगर तू चाहती है जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहे तो उस वक्त तक तन से कपड़ा ना उतारना जब तक तेरे कपड़े पे पेवंद ना लग जाए। अलमारियां भरी पड़ी हैं फिर भी खुदा की कसम नमाज के लिए कपड़े कोई नहीं मिलता। ये बदनसीबी नहीं तो और क्या है। फंक्शन में जाने के लिए, मौत मैयत में जाने के लिए, माइयों मेहंदी में जाने के लिए, बारात वलीमे में जाने के लिए तेरे पास 50-50 हजार का लिबास है। खुदा के आगे सर झुकाने के लिए तेरे पास 500 रुपए की चादर भी कोई नहीं। ये सारे के सारे इल्म के पहाड़ बैठे हैं, इनसे पूछ लो मर्द का जब जनाजा उठता है 3 चादरों में कफन दिया जाता है, एक सीनाबंद और 2 चादरें होती हैं। हमारी औरत की आती तो 5 चादरों में एक सीनाबंद, एक हजारबंद, 2 चादरें, 5वीं चीज सर पे दुपट्टा दिया जाता है। जब सर पे दुपट्टा रख के मेरी धीरानी मेरी अम्मी जान मेरे सामने आई, मैंने कही लाउल आलमीन अब दुपट्टे का क्या वास्ता, अब दुपट्टे की क्या जरूरत है। परवरदिगार आलम ने फरमाया अब्दुल्लाह जब तक तुम्हारे सामने उछलती कूदती रही तुम नंगा सर देखते रहे। आज मेरी बंदी की पहली मुलाकात मेरे साथ कब्र में होने वाली है। मैं नहीं चाहता है और जब कब्र में आवे और मेरे सामने खड़ी हो इसका नंगा सर हो। अंदाजा लगा सुस्ताना वालों जो अल्लाह कब्र के अंधेरे में नंगा सर बर्दाश्त नहीं करता वो बाजारों मार्केटों में नंगा सर कैसे बर्दाश्त करेगा। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास से एक बच्ची गुजरी, 2 छुट्टियां कर रखी थी, 2 गुत्ते बांध रखी थी, परंदा बालों में बांध रखा था। अमीर शरीयत ने देखा आंख में आंसू आ गए, हमारे बेटे दुपट्टा कब से उतार दिया। हंस के कहने लगी जब से बाप की टोपी पगड़ी उतरी हमारा दुपट्टा खुद ब खुद उतर गया है। बालों की कटिंग का तो मेरे नबी ने नहीं कहा था, बालों के फैशन का तो आमना के लाल ने नहीं कहा था। हुजूर ने फरमाया था सर नंगा रखा ना करो, सर को हर वक्त ढांक के रखा करो कि शैतान इंसान के सर से अंदर घुसता है। जहानिया वालों नाराज ना होना, मैं अपना दिल का दुखड़ा अपनी आंख के आंसू से तुम्हें सुना के जाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाजार में तो टोपी की दूर की बात है, पूछो इन उलमाए कराम शेखुल हदीस से। फरमाया जब लैट्रिन बाथरूम में जाओ नंगा सर नहीं ओढ़ के जाया करो, सर को ढांक के जाया करो। ईमानदारी से बताओ जो अल्लाह नंगा सर बाथरूम में जाने की इजाजत नहीं देता वो अपने आगे नंगा सर होकर खड़े होने की इजाजत कैसे देगा। तुम होते कौन हो, तुम्हें इजाजत किसने दी, तुम दीन का मजाक उड़ाओ, खुदा के दीन को खल्त मत करो। जहां देख लो दीन के अंदर किले ठोकने वाले नजर आएंगे, इसकी दीवार को सहारा देने वाला नजर ही कोई नहीं आता है। जिसका दिल चाहता है गिरा देता है, जिसका दिल चाहता है उठा देता है। ईमानदारी से बताओ हम कौन थे, क्या थे, इस वक्त हमें क्या हो गया है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पास खड़े हुए, बेटी अल्लाह अकबर बेशुद्ध मुसल्ले पे लेटी हुई है। फातिमा क्या हुआ? ठंडी सांस लेती था, 4 दिन हो गए, इस जन्नत में कैसे जाएगा, जहन्नम से कैसे बचेगा।
حجر مبارک میں تشریف لے گئے، باہر واپس آئے، ابو ہریرہ کی دھاڑ نکلی، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تجھے بھوک لگی تب رویا کہ نہیں، تیرے پیر میں جتی نہیں، تجھے مدینے کا فرج گرم لگا نہیں، ابو ہریرہ پھر کیوں رویا؟ کملی والے اندر گئے، سارے بال کالے تھے، جب حجرے سے باہر نکلے کملی والے یہ سارے بال سفید ہو گئے، فرمایا ابھی جبرائیل ملاقات کر کے گیا، اس نے جہنم کا نقشہ میرے سامنے کھولا، میں نے جہنم کو دیکھا، ڈر کی وجہ سے میں محمد کے کالے بال سفید ہو گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آنکھوں کی عینی میں موٹے موٹے آنسو کیوں؟ فرمایا ابھی جبرائیل سورہ ہود سنا کے گیا، ابھی جبرائیل سورہ نبا سنا کے گیا، نازعات سنا کے گیا، قیامت کی ہو اللہ کی سن کے میں محمد کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا ہے۔ ہمارے سے بڑا کوئی کمزور کمزور کوئی نہ اہل ہوگا، وہ لوگ روزانہ کل خانیوں میں جاتے ہیں، قرآن خانیوں میں جاتے ہیں، اللہ اکبر، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں کوئی 4 قرآن کا کاغذ دے دیتا ہے، کوئی 5 قرآن کا کاغذ دیتا ہے۔ کتنی بدبختی کی بات ہے، ہم نے پڑھ کے دوسروں کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا، خود پڑھ کے جنت میں جانے والے نہ بنے۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، یہ اعلان کب ہوتا ہے؟ مولانا عبدالحنان صاحب کرے گا، میرے عزیز علماء کرام کریں گے، اگے ہو کے چوڑا چوڑا سینہ کر کے کریں گے۔ حضرات میت کے وارثوں کی طرف سے اعلان ہے، اگر کسی نے ان کے والد گرامی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے کچھ لینا دینا ہو، مرنے کے بعد تدفین کے بعد ان کی اولاد سے رابطہ کر لے۔ ان کے 4 بچے کہہ رہے ہیں اپنے ابا کا دین ہم دیں گے، لین دین ہم کریں گے۔ جب یہ اعلان ہوا قبر نے جھٹکا مارا، میں نے جھانک کے دیکھا میت نے، مرنے والے نے اپنے کفن میں سے منہ نکال کے کہا یہ اعلان کس نے کیا؟ میں نے کہا تیرے بیٹے رشید نے کیا، رفیق نے کیا، تیرے بیٹے انور اصغر نے کیا۔ میت نے چگاڑ ماری، رو کے کہنے لگی ان بدبختوں کو کہ ان کا حق تو بعد میں دینا، پہلے میرا حق تو مجھے دے دو۔ میں نے کہا تیرا حق تجھے کیا دے؟ کہ جب انہوں نے مجھے قبر کے اندر میری قبر کے کفن کی تنیاں پکڑ کے جب مجھے قبر میں کلمہ شہادت کا نعرہ لگا کے اتارا، اللہ اکبر، قبر میں گرنے کی دیر تھی، یہ تو پٹے سلیٹے رکھنے میں مصروف ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، دو لمبے قد والے سرخ چہرے والے میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے یوں کر کے مجھے آگ کی گھوڑی دکھائی، رب اکبر کی قسم میں اڑ کے دیکھنے سے میری کفن کی تنیاں پھٹ گئی۔ عبدالحنان یہ کوئی پھول لے کے نہیں آئے، کوئی شربت لے کے نہیں آئے، کوئی روٹی لے کے نہیں آئے، عبدالحنان بڑے بڑے چھوٹے ہاتھ میں لے کے آئے ہیں۔ ان کا ارادہ اچھا نہیں لگتا، میرے پہ مٹی ڈل جائے گی، ان کا رشتہ میرا ٹوٹ جائے گا۔ ابھی تو باپ کا چہرے کا، ابھی تو باپ کا کفن دیکھ رہے ہیں، باپ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، قبلے سے پھرا کے نہیں پھرا۔ اور میرے بچوں خدا کے واسطے ان پر تو بعد میں احسان کرنا، پہلے میرے پر احسان کر دو، میرا قرضہ کل بھی اتر جائے گا، دینے کا جب وعدہ کر لیا معاملہ طے ہو گیا، لیکن میرے بچے اب میرے پر احسان کر کے جاؤ، جب میری قبر پر مٹی ڈال لو، پھول ڈال لو، پانی ڈال دو، دعا کر لو، پوری برادری چلی جائے پرواہ نہ کرنا، میرے 4 بچوں میری قبر کو گھیر کے بیٹھ جاؤ، چاروں طرف سے آسے پاسے میری قبر کو گھیر لو، اتنا قرآن پڑھ پڑھ کے سنو، اتنا درود شریف پڑھو تاکہ فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ فرمایا میت چگاڑ مارتی ہے، انسان جن کے علاوہ سب کو سنایا جاتا ہے، چیخ مار کے کہتی ہے تمہیں خدا کا واسطہ جس کو مارتے ہو مانو، مجھے قبر میں تنہا چھوڑ کے نہ جاؤ۔ مجھے ڈالنے کی دیر تھی، 7 بچھو آ لیے منہ کھول کے کھڑے ہیں، اور میرے بچے ان کے منہ میں قرآن کی آیتیں دے دو ورنہ تمہارے باپ کا کچھ نہیں بچے گا۔ باپ کی قرآن خالی پہ بڑی دنیا آئی تھی، 30 دیگے کھا کے گئی۔ 30 دیگے کھڑے والوں سے پوچھو جو کہہ رہے تھے چوری صاحب کلام بخشو کلام بخشو، یہ 15 منٹ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے رہے، انہیں سیاست یاد آئی، تیرے باپ کی مغفرت کی دعا یاد نہیں آئی۔ سامنے آ کے کہتے ہیں چودھری صاحب ذرا دیکھیا جائے، چودھری صاحب ذرا دیکھیا جائے، چودھری صاحب اللہ کا حکم وہ کہتا بنے ہے، کیا ضرورت تھی تم مرحوم کے سالے ثواب کے لیے آیا، تو چودھری کو شکل دکھانے تو نہیں آیا، جب تو نے کہا ادھر دیکھیا جائے، جزا سزا والا حساب والا ثواب والا معاملہ تو ختم ہو گیا، منہ میں صحیح رہ گیا ہے۔
फकीर का काम आज ही दिखाना होता है। फकीर कॉटन पहन के नहीं आता, राडो घड़ी पहन के नहीं आता, हशपपी का जूता पहन के नहीं आता, खस्ता लिबास में आता है ताकि अमीर को मेरे पे रहम आ जाए। ये कुरान खानी हो रही है कि तमाशा हो रहा है, गोल तकिए लगे हुए हैं, अखबार पड़े, मिनरल वाटर की बोतलें पड़ी हुई हैं, अल्लाह अकबर, दुनिया आ रही जा रही है, गाड़ियों की जुम जुम की आवाजें आ रही हैं, लाखों रुपए के मोबाइल रख रहे हैं, अल्लाह अकबर, खतीब की खिताबत पर बार बार घड़ियां देख रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस बस जालिमों से पूछो ये अपने भाई की बख्शिश करवाने के लिए आए या सारे के सारे मिलके मुझे डराने के लिए आए। जिस बंदे को खुदा के आगे बैठने का ढंग नहीं आता उसे खुदा से लेने का तरीका कैसे आएगा। मुजरिम का काम सर उठाना नहीं होता, मुजरिम का काम सर झुकाना होता है, मुजरिम का काम इतराना नहीं होता, आजिज़ी दिखाना होता है। ये कैसी दुआ इधर उधर देख रहे, अल्लाह फरमाए इसे एहसास ही नहीं कि मरने के बाद इसके साथ क्या होने वाला है। कर जाओ अपनी बीवी के आगे हाथ जोड़ के चले जाओ, बीवी दिखा दो खुदा के वास्ते। अकड़ दिखा के तुम्हें क्या मिला, फरिश्तों ने तरोड़ मरोड़ के कबर के ढांचा बना के फेंक दिया। हाथ जोड़ के चले जाओ, तेरी मर्जी, तू मेरे बच्चों को डॉक्टर बना तेरी मर्जी, वकील बना तेरी मर्जी, लेकिन मेरे बच्चे को कुरान का हाफिज बना देना ताकि 4 रातें कमर में सुख से मैं आराम कर सकूं। एक नौजवान का इंतकाल हुआ, मरते अजाब के दरवाजे खुल गए, तरह तरह का अजाब दिया जा रहा था। कुछ अरसे के बाद उस नौजवान की कब्र में जन्नत का दरवाजा खुल गया, जहन्नम का बंद हो गया। कुछ अरसे के बाद उसकी कब्र में सांप बिछोने आना बंद कर दिया। आसमान से अरमा रात की बारिश होने लग गई। कहने लगा इलाही नमाज कोई नहीं पढ़ी, परवरदिगार आलम तेरे से माफी कोई नहीं मांगी, इलाहुल आलमीन मैंने रोजा कोई नहीं रखा, मेरे जिक्र मैंने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ा, मेरे कुरान की आयत नहीं पढ़ी। इलाही खबर का नक्शा कैसे बदल गया, खबर का मंजर कैसे बदल गया। मालिक कायनात ने फरमाया जिस दिन तेरा जनाजा उठा था तेरी बीवी की गोद में 2 महीने का दूध पीता बच्चा था, आज वो बच्चा इस काबिल हो गया कि उसकी माँ उसकी उंगली पकड़ के मदरसे में लेके गई और उस्ताद ने उसे बिठा के कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्ताद ने बिस्मिल्लाह पढ़ाया, फरमाया बच्चे ने तोतली जुबान से मुझे रहमान और रहीम का, मैंने फौरन अजाब को रातों में बदल दिया। मेरी गैरत ने गवारा न किया बेटा मुझे रहमान रहीम कहे, मैं बाप को अजाब दूं, मेरी गैरत को हया आ गया। बाप मर गया जो 4 बजे तक मोबाइल के ऊपर हयाती देखते हैं, बताओ बाप को कितना खमियाजा भुगतना पड़ रहा होगा। छोड़ दो, तुम किसका वास्ता मानते हो। फकीर अपना हक अदा करके जा रहा है, तुम्हारे आगे रो के तुम्हें सुना के हाथ जोड़ के जा रहा है। खुदा के वास्ते लोगों सांप डस डस के थक जाता है, हम गुनाह कर करके नहीं थके। कौन सी ऐसी मजबूरी थी जिस मजबूरी ने आज मुझे आपको मेरे आका का दुश्मन बना दिया। मौलवी साहब नमाज भी पढ़ी है, आज हमने अपनी मस्जिद का गश्त भी किया है। कौन सी दुश्मनी, अल्लाह की कसम जुमा जैसा बरकत मुकद्दस वाला दिल उस नमाजी ने जुमा उस वक्त तक नहीं पढ़ा जब तक रहमत वाले नबी की सुन्नत पे उस तक नहीं चला दिया। मुझे दाढ़ी कटाने वाले से गिला कोई नहीं, मुझे उस अजाब से उस अबाब वाले से गिला है। और जिसने मेरा अजीज एक दिन में 100 शेवें कर दी उसके हाथ को एहसास नहीं हुआ, उस पगले को पता ही कोई नहीं जिन हाथों से मेरे नबी की सुन्नत को उजाड़ा। रब अकबर की कसम उन हाथों में मुझे हौज़े कौसर का प्याला नहीं पकड़ाया जाएगा। सोचो तो सही, कहां से मुसलमान लगे, न लिबास से, न किरदार से, न खाने न पीने, न बोले हंसने। इस उम्र में तो हमारे हाथों में नूरानी कैदा हुआ करता था, 20-20 हजार के मोबाइल हमारे 8-8 साल के बच्चों के। बच्ची सुबह उठ के माँ से दूध नहीं मांगती, मोबाइल मांगती है। बताओ वो बच्चे राह बसरिया कैसे बनेगी। जो बच्चा रात को 2-2 बजे तक गेम में देखे वो बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी कैसे बनेगा। क्या हो गया तुम्हें। भेड़िया भी अपने बच्चे को, शेरनी भी अपने बच्चे को गोद में उठाए फिरते। सुबह से निकलते हो कोई खेतों में, कोई नौकरी पर, दुकान में, रात को 12 बजे आते हो। क्या तुम इंसान कोई नहीं।
वक्त ही कोई नहीं तुम्हारे पास तुम्हारे बच्चों के लिए। दुकान पे मेहनत करके दुकान बना ली, जमीनों पे मेहनत करके जमीन बनाई, नस्ल पे मेहनत नहीं की उजाड़ कर रख दिया। जिम्मेदारा करने वालों, तुम्हें पता है किस फसल को कौन सी खाद लगेगी, कपास को कौन सी खाद लगेगी, तुम्हें पता है पानी किस वक्त लगेगा। अल्लाह अकबर, फसल खराब होती देखो, फसल उजड़ती देखो, फसल को कीड़ा लगते देखो, फौरन मशवरा करोगे हाजी कौन सा स्प्रे करे, या साहब कौन सी खाद लगाए। नस्ल को उजड़ता देखो, पूछो कुरान से कौन सी स्प्रे करे, पूछो आयशा के घर वाले से कौन सी स्प्रे करे। फरमाया ओ लोगों, फसल को पानी दो, फसल अच्छी हो जाती है। अल्लाह अकबर, पानी दो है, एक कुदरती पानी, एक आग का पानी। एक पानी फसल को लगता है, एक नस्ल को लगता है। फरमाया ओ लोगों, फसल को पानी देने से फसल अच्छी हो जाती है। जब बाप को बेटा घूर के देखने लग जाए, माँ को पगली कहने लग जाए, रातों को देर देर से कर रहा है, और बहन को आफतें मुसीबतें बोझ कहने लग जाए, भाई को लेके अदालत के अंदर खड़ा हो जाए, फिर इस औलाद को, इस नस्ल को पानी की जरूरत है। रात को मियां बीवी दोनों तहज्जुद की नमाज पढ़े और अल्लाह के आगे बच्चों की तरह रो के दिखाए। फरमाया दुनिया की फसल को पानी लगा दो, फसल अच्छी हो जाती है, और तहज्जुद के वक्त का आंसू माँ बाप का औलाद को लग जाए, खुदा औलाद की नस्ल अच्छी फरमा देता है। माल के खुद जाने पे रोना आया, सीजन लगने पे रोना आया, कभी औलाद मेरा गिरो, इसका चेहरा देख के आपको रोना नहीं आया? जरूरत ही नहीं, रात को 2 बजे बेटा घर आ रहा है, बाप की जरूरत ही नहीं पूछे। हमें बड़ा याद है सन 1982-81 के अंदर, जब घर कभी बच्चों के खेल क्या होता था, छुपन छुपाई हो, बंदर किल्ला सा खेल लिया, लोगों को परियाना लुक छुप के आना, ये खेलो पता ही होता था क्या। थोड़ी देर दिन छुपे सूरज छुपे घर आया करते हैं, बाप कान को मरोड़ी देता, कहाँ था? उसके घर था। उंगली पकड़ के उसके घर जाके दरवाजा खटखटाते, बोबो तेरे घर था? नहीं मेरे भाई से चमाटे मारता लेके आता। अल्लाह की कसम झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी, अब तो मैं सिखाती है, बाबा ये कहे तो ये कह देना, पीछे मैं जवाब दे दूंगी। और मेरी माँ खुदा के वास्ते इसे छोटा झूठ ना सिखा, कल जब बड़ा झूठ बोल के तेरा दिल टूट जाएगा, तेरा जनाजा उठाने वाला भी कोई नहीं आएगा। नौजवान नस्ल से कहूंगा, अल्लाह तुम्हें खूबसूरत लड़की दे, शादी तुम्हारी मर्जी की हो, लेकिन बीवी के आगे माँ को डिग्रेड न कर देना, माँ को क्रॉस न कर देना। खुदा के वास्ते कभी बीवी के चक्कर में माँ को न रुला देना, वो तो 4 दिन रोके मर जाएगी। खुदा की कसम, खुदा जब तक तुझे तरसावे ना रुलावे ना, तेरे घर में मौत कोई नहीं आएगी। सुबह सुबह अपने गांव में निकल जाना, अपने बाजार वालों से पूछो, इस चाचे से पूछो, बाबे से पूछो क्या हाल है। जब हाल बताने से पहले अल्लाह अकबर ठंडा होकर भर के आसमान की तरफ देख ले तो समझ ले बाबा 2 रोटियों पे औलाद पे बोझ बना हुआ है। किसी बुए पर एक बुढ़ी बुढ़ा बैठे हुए थे, परेशान थे, माजी को याद कर करके रो रहे थे। अल्लाह अकबर, किसी ने कह दिया चाचा धूप चढ़ रही अंदर क्यों नहीं बैठता? चाचे ने 2 लफ्जों में सारे घर का नक्शा खींच दिया। कह लगा पुत्र ले गए गोवा, धिया ले गए हो, बुढ़ी बुढ़ा इवे रह गए, जीवे बैठे चोर। अब तो सिर्फ चरपाई आएगी जो हमें उठा के ले जाएगी, अगले जहान का भी नहीं पता, दुख में रहेंगे या कब्र में रहते सुख में गुजारेंगे। चिट्ठी दाढ़ी वाले को खुदा के वास्ते कभी यारों के आगे डंकर न कर देना। मुझे तो औलाद नसरत होती है जो खुद अंदर कमरे में बैठा होता है, अब्बा बाहर में हाथ में पंखा लेके बैठा होता है। मैं उस बच्चे को फरमा बरदार नहीं कहता जो दुकान की कुर्सी पे बैठे बाप नलके से कूलर भर के ला रहा होता है। ये भी जमाने आने थे। आज मोटरसाइकिल की बत्ती पे लिख लिया अम्मा ठड़े छावा। जब ये ठंडी छाव तेरे घर में तेरी जूतियों में रुल गई, उस वक्त तुझे क्यों याद नहीं आई? इसका एक एक आंसू खुदा का कहर बन के तेरे पे गिरेगा। खुदा के वास्ते न रुलाइयो। बाकी एक एक हाथ तुझे एक रात भी कब्र में लेट नहीं देगी, इसे आना करवाइयो।
माँ बाप की फर्मा बरदारी इस तरह करे जिस तरह लाठी बूढ़े की फर्मा बरदारी करती है। बूढ़े के हाथ में लठ है, इस लठ की आंख है, इस लठ के कान है, इस लठ की जुबान कोई नहीं। कभी अपने अपने बूढ़े को जिसका सहारा बना उसे नहीं कहता। सुबह हाथ में आऊंगा नींद आ रही है, रात के वक्त ये लठ को कहेगा उठ मेरे बाथरूम जाना है, ये लठ नहीं करता। मेरे कीचड़ में जाना नहीं करता, मेरे मस्जिद में जाना नहीं करता, मुझे जानवरों के भाड़े में जाना नहीं करता, मुझे खेतों में जाना नहीं करता। फरमाया जिस तरह लठ बूढ़े का ताबेदार होता है तो लठ की तरह माँ का पर बाप का ताबेदार बन जा। जब तक माँ बाप जिंदा है अपने कानों आंख रख, जुबान को काट के फेंक दे। अगर ये जुबान में उठ गई तेरे लिए जहन्नम के दरवाजे खोलने में देर नहीं करेगी। तुमने एक पैगाम सुना होगा, आओ बच्चों मिलकर काम करें, पाकिस्तान का रोशन नाम करें। आओ वीरों आज मिलकर एक काम करें। सुबह उठ के नाराज बहन भाइयों के दरवाजे पर, सुबह उठ के नाराज बहन भाइयों को फोन कर देना और पहल कर अल्लाह अकबर। असर की नमाज पढ़ी, हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने अपने खादिम को बुलाया, एक रुका लिखा अस्सलामु अलैकुम भाई हसन, आज 3 दिन हो गए नाराजगियां चल रही है, 3 दिन हो गए दोनों भाई आपस में नाराज है। क्या तूने दादे अब्बू की वो हदीस ने सुनी, मुसलमान जो सुलह करने में पहल करेगा अल्लाह उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर देता है। मुसलमान जो सुलह करने में पहल करेगा जन्नत में पहले जाएगा। नीचे अल्लाह अकबर मेरा अजीजो, अल्लाह अकबर। फिर लिखा मुसलमान ही कोई नहीं जो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज हो। मेरे भाई जो पहल करेगा पहले जन्नत में जाएगा। अगर मेरे भाई मैं तेरे दरवाजे पे आके पहल करूं जब मैदान बासर में मैं जन्नत में जाऊं तो दादा देख के फिर छोटा क्यों जा रहा है, बड़ा पीछे क्यों जा रहा है, चल रात की रात बात घर में खत्म कर दे। ए मेरा भाई मैं दरवाजे में गली में निकल के खड़ा हो गया, जल्दी इस खत को पढ़ गया और आके मुझे सीने से लगा ले ताकि भरम बच जाए आले बतूल के घर का, ताकि भरम बच जाए अली के बच्चों का। अल्लाह अकबर। छोटा पहले जन्नत में जाए, अल्लाह अकबर। बड़ा भाई दादे मोहम्मद के सामने शर्मिंदा ना हो जाए। या तो भाभियों के ऐप मोबाइलों पर उछालते हैं, बहनों के दमादों के ऐप मोबाइलों पर उछालते हैं। मैं पिछले महीने मेरे अजीजों चाचे खालू भाड़िए की कब्र पे बैठा था। खालू कौन है? हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। और भाड़िया कौन है? श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह। इन दोनों की कब्रों के दरमियान बैठा था। फिर मुझे कहने लगे शेख आओ आपको मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे लेके जाए। जब वहां पहुंचे तो वहां अरबी के अंदर वाक़या सुनाया। हमने तो पहले सुन रखा था अल्लाह अकबर, लेकिन और अंदाज से सुनाया। कह लगे भी आपको भी शराफी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे ले जाएंगे। अल्लाह की इज्जत की कसम हज़रत शहाबुद्दीन सोहरावर्दी सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह अन्हु और मिस्र हाफिज रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से ऐसी ठंडी हवा नहीं थी, ऐसे लग रहा था कि इनकी कब्रों के अंदर एयर कंडीशन चल रहा है। हम हाथ लगा के हमें पीर मोहम्मद साहब झांकते रहे, हाल क्या हवा, ऐसे हवा टकरा रही थी। इधर श्री शक्ति जुनैद बगदादी, इधर मारूफ करकी मिशराफी। अल्लाह नशे के आदि थे, शराब की लत पड़ गई थी मिशराफी। किसी ने आके कहा मारूफ करकी जी वो देखा भी शराब का क्या, वो शराब कपड़ों पे रोड़ी बैठा है, ये शराब लगी है। जल्दी से आवाज दी जुनैद मेरी लाठी लेके आ, पानी का बर्तन लेके आ। जुनैद बगदादी लाठी अपने पीर की लेके आए। अब लाठी के सारे अल्लाह अल्लाह की ज़रबे लगाते चले। हजरत जुनैद बगदादी पानी का लोटा लेके चले। बाजार में मिशराफी रहमतुल्लाह अलैह लेटे हुए थे। जुनैद जरा मेरी लाठी फड़ी हो। जुनैद बगदादी ने लाठी पकड़ ली। मिशराफी ने पानी का बर्तन मुंह पे डाल के मुंह धो दिया, कपड़े धो दिए। अल्लाह अकबर। कह लगे जुनैद अल्लाह का शुक्र है मुसलमान अल्लाह अकबर जलील होने से बच गया, अल्लाह का शुक्र है इसका ऐब दायर होने से बच गया। आम दौरफ की जगह जितनी दुनिया थी इसके मुंह पे शराब लगी रहती, इसके कपड़ों पे शराब लगी रहती। मैंने ये नामो निशानी खत्म कर दिया। चलो जितनों को पता लग गया, बाकियों को पता न लगे। हजरत जुनैद बगदादी मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह चले गए। हजरत मिशराफी रहमतुल्लाह अलैह को होश आया, अपनी मट्टी अपनी जगह अपने कपड़े गिल्ले देखे। कह लगे मेरा मुंह कौन धो के चला गया? किसी ने कहा मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह धो के चले गए। किस लिए? शराब तेरे कपड़ों पे गिरी पड़ी थी, रूढ़ी पड़ी थी, इसलिए तेरा कपड़े तेरा चेहरा धो के चले गए, तेरा ऐब लोगों पे ज़ाहिर न हो जाए।
वही बैठ के कहा अल्लाह बस हो गई, माफ कर दे। मेरे शराब पीने का मारूफ खिलखी रहमतुल्लाह अलैह को पता लग गया। मेरे अजीजों तौबा तौबा, रब रब करता घर आया। रात का वक्त है, तहज्जुद के वक्त उठ के खुदा के घर में पहली सब में जाके रोने लग गया। अल्लाह अकबर। मारूफ खिलखी रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली। मारूफ खिलखी रहमतुल्लाह अलैह बिस्तर पे आके लेटे। आपको ख्वाब में मालिक के कायनात की ज़रूरत हुई। मालिक के कायनात ने फरमाया मारो तूने मेरे एक बंदे को बचा लिया, परवरदिगार आलम ने जहन्नम की आग से तुझे बचा लिया है। तूने मेरे बंदे का ऐब छुपाया, मेरे विलायत में तेरा नाम बुलंद कर दिया। आप उठे सजदा शुक्र के लिए मस्जिद में गए। शराफी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद की पहली सब में बैठे थे। हज़रत फारूकी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे बेशर ये हाल को कैसे आया, पहले बाजार में पड़ा था अब तो यहाँ बैठा हुआ है। फारूकी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मुड़ा किया, मुस्कुरा के कहने लगे मेरे से क्यों पूछता है, सारा मंजर तो ख्वाब में देख के आ गया है। पर्दे डालो अल्लाह के वास्ते, अगर अपने पर्दे बचाने हैं। बहुत बड़ा गुनाह, कबीरा गुनाह है। अब्दुल्लाह सिद्दीकी तकरीर कर रहा था, उसके हाथ में कागज था, नई नई टिश्यू पेपर था, नई नई खुशबू वाला था, नई नई बिस्किट था, हाथ में था, नई नई चॉकलेट थी, नई नई कुछ और था। लोग तो बात का बतन कर जाओ वही ठप कर दो। कोई भाई के बारे में कि बस भाई मेरा भाई है मैं जानू, कोई बीवी खबरदार, तो होता कौन है मेरी बीवी की बात करने वाला, तो होता कौन है मेरे माँ बाप के गिले करने वाला। पहली बात पर रोक देंगे, अगले की जरूरत नहीं होगी। अगर पहली बात में मजे लेने लग गए, खुदा की कसम खानदान के खानदान उजाड़ के रख देगा। अपने रमजान को कीमती बनाओ, रोजा 15 घंटे का रख के सारा दिन ऐप। हमें क्या हुकूमत को कर रही है, हमें क्या पता कौन सी पार्टी क्या कर रही है, हमें क्या पता इसके घर में होता होगा जो हो रहा होगा। भाई हमें तो अपने बस अल्लाह से बख्शिश, अल्लाह से माफी मांगे। वादा करके उठो 5 वक्त की नमाज की पाबंदी का इंशाअल्लाह। दुकान वाला कह रहे मैं कामयाब, मकान वाला कह रहे मैं कामयाब। अल्लाह कुरान में ऐलान कर रहा है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। और लोगों ना दुकान वाला ना मकान वाला नमाज वाला कामयाब हो गया है। अभी से नमाज की आदत डाल लीजिए ताकि रमजान मुबारक में कोताही ना हो सके। कोई इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। हजरात इंजुरुल्लाह सुनो, जिसने ईशा की नमाज पढ़ ली सारी रात रहमत वाली छांव में रहेगा। जिसने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, पढ़े बगैर सो गया, अच्छी तरह जान ले मैं नहीं कह रहा, गुंबद खजरा का मक्की कह रहे उसकी चरपाई के नीचे सारी रात जहन्नम की आग जलती रहेगी। है कोई अल्लाह का बंदा दिल ही दिल में मेरे अजीजों जो बहन से नाराज हो, रिश्ता नहीं दिया नाराज, भाई से नाराज हो, रिश्ता नहीं दिया, जमीन जायदाद के चक्कर में आज फकीर के कहने पे तुम अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, तुम मेरे अजीजों मुझे नहीं अल्लाह के नबी को राजी करने के लिए आज जाना, बेटी से पूछ के भाई से पूछ के अपने भाई का नंबर मिलाना और कहना यार चोखे झाड़े हो गए, तेरे से मुलाकात नहीं हुई, चल कोई नहीं 4 तू ले जा दो मैं रख लूंगा। लेकिन माँ जाओ के आपस में तकसीम नहीं हो करती। अब एक माँ की औलाद है, या तू सुबह आ जा या मैं सुबह हूँ, अल्लाह की कसम दोनों में से किसी एक ने कह दिया भाई मैं आ रहा हूँ, रब्बे काबा की कसम है तो सुबह जाएगा, रात से फरिश्ते उस जगह पर कतारें मांग के खड़े हो जाएंगे। ऐसे चांद का यारो क्या फायदा रमजान के चांद का कि बहने नाराज भाई नाराज, ऐसे चांद का क्या फायदा कि बेटा माँ को मुबारकबाद न देने आए मारे, नाराज होके बाप घर बेटा घर से गया। ऐसे चाँद का क्या फायदा, ऐसी सहरी अफ्तारी फेड़िया 2 जलेबियों का क्या फायदा कि सहरी अफ्तारी पे माँ तेरा नाम ले लेके रोती रहे, तेरा दिल माँ बाप के लिए ना है, कलेजे फट जाते अल्लाह की कसम घर गुजारिए सुन के। मुझे कहते अब्दुल्ला लाल कोई खतीब भी रोता, तू क्यों रोता है? मुझे बताओ बोली साहब के हंसने की जगह तो बताओ, मैं कहाँ हंसू, किसका चेहरा देख के हंसू? कोई है जो कहे मैं जन्नती हूँ, कोई है कहे मैं बाका फारो मरदार हूँ, कोई है जो कहे मैं बैरों के दरवाजे पे ईदी दे के आया, कोई है जो कहे मेरी फुफिया मेरे से राजी, मैं ताए को खड़ा होकर सलाम करता हूँ। रायगढ़ के इज्तिमा के बाद में हवेली में मौला इब्राहिम साहब के बाद देवला साहब के पास बैठा था, एक अमेरिका के साथी मुझे बाजू पकड़ के बाहर ले आए, नाश्ता मेरे साथ करे, मैंने कहा मुझे बुजुर्गों से मिलने दो, मैंने फारूक वाला फारूक गुजरात वालों से मुलाकात करने की, मैंने कहा वो इंतजार में है मुझे उनसे मिलने दो। कहा जी एक बात आपसे करनी है। बोला ना अल्लाह, बोला ना बहनों बेटियों के हुकूक बयान करते हो, फूफियों के हुकूक तो बयान कर दो, चाचियों तायों के हुकूक बयान कर दो। मैंने कहा अल्लाह की कसम ठंडा होकर भर के कहने लगा अल्लाह अकबर, अरसा गुजर गया भाई मरा, भतीजे को देखता रहता हूँ, घूर के चला जाता है, न सलाम करता है न सलाम का जवाब देता है, किसका भी कोई नहीं दिया।
کتنا سالی بھتیجا ہے جس نے باپ کے مرنے کے بعد پھوپھیوں کو منہ لگانا چھوڑ دیا. میرے نبی نے فرمایا ابا مر جائے تو باپ کے بھائی تائے چاچے باپ کی بہن پھوپھیوں سے ویسا برتاؤ کر جیسا باپ سے کرتا تھا. ماں مر جائے تو خالہ مامے سے ماں ماسی ماسی ماں نہیں ماں جیسی ماسی. ماں تو نہیں تھی ماسی ماں جیسی. فرمایا ماں مر جائے خالہ کا ویسے خال کا جیسے ماں کا کرتا تھا. جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہا. خطبہ ارشاد فرماتے خاموش ہو گئے. فرمایا میری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے اسے میرے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں. جس کا رشتہ دار جس سے ناراض ہو پہلے اسے بنا کے آئے پھر نماز پڑھے. حال بر سعید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. پھپھی ناراض تھی اور وجہ کیا تھی کہ یہ مسلمان اس نے کلمہ نہیں پڑھا. جاؤ بنا کے آؤ. ننگے پیری دوڑتا بتیجے کی گلی میں پھپھی کے دروازے پہ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا. معاف کر دے گی سے. انہوں نے کہا کس نے تجھے کہا معافی مانگو؟ کہ وہی جس کا تجھے کلمہ نہیں پڑا ہر بات پر گالی دیتی ہے. ہائے ہائے اس کی غیرت جاگی. کمرے میں کونے میں بیٹھ کے جا کے رونے لگ گئی. کہ اس نے بھیجا کہا اللہ. صحابی کہتا ہے میری پھپھی نے جلدی جلدی غسل کیا جو دوپٹہ سر پہ تھا رکھا اور روتی باہر آ گئی. کہنے لگی دو شرطیں. اللہ تو معافی چاہتا ہے ایک شرط اگر تو معافی چاہتا ہے میں معاف کروں تو ان سے مجھے معافی دلوا دے. اماں تجھے ساری زندگی گلے کی ہے تجھے کیسے معافی ملے گی؟ کہنے لگے مجھے پتہ وہ نبی اپنی بچیوں سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ جھاڑیے والا ہمارا ابو ہے جو حضور کو جا کے دکھائے نماز روزے حج لے کے جائے. اللہ کے پاک پیغمبر نے کہہ دیا میاں والی کے اندر 7 دن کی بچی کے سینے میں 5 گولیاں ماری تھی. بتا دے رہی ہو کہ میں آنسو کیوں نہ آیا؟ جھاڑیے والوں تم بھی تیاری کرو میں بھی تیاری کرتا ہوں. بتا دے محشر میں کوئی نماز ہاتھ میں لائے گا کوئی نمازوں کا گلدستہ کوئی روزہ لائے گا. گیند کی طرح چھوٹی سی گیندڑی کی طرح ایک بچی پھدکتی ہوئی آئے گی اور حضور کا لڑ پکڑ کے کہے گی چل مجھے اللہ سے انصاف دلوا. رحمت والا نبی بچی کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جائے گا. کوئی نماز روزہ دکھائے گی وہ نتی چھوٹے سے ہاتھ میں 5 گولیاں دکھائے گی. کہے گی ربا سیدھا دیکھ اور گولیوں کا سائز دیکھ. پہلی گولی لگی میں 4 فٹ بستر سے اچھل کے زمین پر آ کے گری. یا اللہ جب اسے غسل دے کے کفن میں رہا تو نے دیکھا تھا گلاب کے پھولوں میں مجھے چھپایا. رب اکبر کی قسم ہے بچی کے چہرے کے درمیان گلاب کے پھول تھے. دنیا نے دیکھ کے فیصلہ کیا گلاب میں وہ خوبصورتی نہیں تھی جو بچی کے چہرے میں تھی. اگر اللہ نے اس کے خون کا تیرے میرے سے حساب لے لیا چھڑانے والا کوئی نہیں آئے گا. ابھی اس واقعے کو 2 دن نہیں ہوئے. 2 دن کے بعد کراچی کے یوم آباد میں 24 دن کی بچی کے گلے پر باپ نے چھڑا پھیر دیا. ہم تو مکے کے کافروں کو روکتے تھے کیسے سخت دل تھے جو بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. انہوں نے پریکٹیکلی طور پہ کر کے دکھا دیا. انہوں نے زندہ درگور کیا. میں پچھلے دنوں میرے عزیزوں 2 محرم الحرام کو پچھلے میں پنڈو عاقل میں جلسے کے لیے گیا. پوری گلی میں اندھیرا. میں نے کہا بھائی یہ مسلم کی سندھی مسلمان مہاجر کی لڑائی کل نظر لڑائی نہیں پورا پنڈو عاقل سوگ میں ڈوبا ہوا. میں نے کہا کیا ظالم باپ نے 9 بچیاں 4 بچے پتہ نہیں 5 بچیاں بیوی سمیت رات سب کے گلے پہ چھڑا دیا. اللہ اکبر. او لوگوں اس گھر کا کیا عالم ہوگا جس گھر سے بیک وقت 11 جنازے اٹھے. اتنی بھی دنیا کی ہرس ہے. جاؤ جا کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنا. یہ چہرہ ترس کے قابل نہیں تو کب بڑھے گا؟ ترس کھاؤ اللہ کے واسطے. ہنسنا آتا ہی نہیں ہنسے کون؟ رونے سے تو پہلے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے. او خدا کے واسطے اللہ کو اکڑ کے ہنس کے نہ دکھاؤ اللہ کو رو کے دکھا دو. ہنسنے پہ وہ کام بگڑے بنا کام بنے بگڑ جاتے ہیں. رونے پر اللہ بگڑے کاموں کو بھی بنا دیتا ہے.